morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9th, subject social science, and today we will discuss about chapter number 2nd of history, and the topic name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. And this is the lecture 1, and this chapter we will cover in 9 to 10 lecture. So student, firstly we will recall the French Revolution, and you know the French Revolution had occurred on 14 July 1789, and the French Revolution provided the idea of liberty, fraternity and democratic rights. And we got the idea of socialism from Russian Revolution. Socialism vision means, according to the social group, socialism means all persons are equal. They have equal right and equal freedom. And in this chapter we will learn about the socialism in Europe and the Russian Revolution. After the French Revolution, many society had changed in Europe. So student, let's start, and today we will cover some topic, and today we will cover, the French Revolution the French Revolution had a divide into different categories. So firstly we will discuss about the age of social change, and second we will discuss about different group. In 18th century in Europe there were different types of groups were emerged, such as liberals, radicals, conservatives. Liberals means those person who wants to change the society. They provide equality to all persons. Radicals mean those person who change the society. They want to change society by new ideas. And conservative, those person who believe in old vision, old thought, and they do not want to change the society. And next we will discuss about industrial society and social change due to industry. So change in social society. And last I will give some question in your homework. So student, let's start, and firstly we will discuss about the introduction and the age of social change. Student, firstly you will recall the French Revolution, and the French Revolution had occurred on 14 July 1789, and we got the idea liberty, democratic rights and fraternity are the most important legacy of the French Revolution, because the French Revolution provide equality and they provide constitution to other countries. And the French Revolution opened up the possibility of creating a new social structure. After the French Revolution, it opened new possibility of creating a new social structure, because many countries got the idea of liberty, democratic right from French Revolution. And the French Revolution opened new horizon for other countries. Firstly, the French Revolution had divided into different states, and before the 18th century, society was broadly divided into a state and order. And according to French Revolution society, French society have divided into 3 parts. First, nobility, clergy, and third, state. And aristocracy and church who control economy and social power. Louis XVI control economy and social power, and all power in the hands of Louis XVI. But after the French Revolution, the constitution had formed in 1791 by the Constitutional Assembly. And student, after the French Revolution in India, Raja Ram Mohan Rai, he was social reformer, and Desrosiers, he was a poet,
and he was belong to liberal and he wanted to change the society. They pointed out the importance of French Revolution and they got the idea of liberty, fraternity and democratic rights from the French Revolution and applied in our country. देश के क्या है, इंदिरा, ये आपके राजा राम मोहन राय है, टीपू सुल्तान है, डेरोजियो ने जो क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को अपने कंट्री में क्या किया, फॉलो किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इन चीज़ों को क्या किया, यूज़ किया गया है. सभी पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड किया, लिबर्टी प्रोवाइड किया, फर्टर्निटी प्रोवाइड की गई है. एंड आफ्टर द French Revolution, new ideas about individual rights and societal change began to be discussed in Europe and Asia. You know, French Revolution होने के बाद new ideas were started in discuss in Europe and Asia. काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि सबको क्या मिले, they wanted to individual rights and they wanted to change the society. And they began to discuss in Europe and Asia. And many men, women and many nationalists formed their own group according to their thought and vision. And new group were emerged and they wanted to change the society according to their wishes. So new group were emerged in 18th century in Europe. And firstly, we will discuss about different types of groups. Firstly, in 18th century in Europe, there are 3 types of groups such as liberals. Liberals means those person who wants to change the society. Radicals also, they want to change the society and they want to new thought came into their country. And conservative believe in old thought, they do not change the society. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस लिबरल्स मीन्स उदारवादी हम बोलते हैं कि जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जो सभी को, दे प्रोवाइड इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन. लिबरल्स. रेडिकल्स होते हैं जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में सबको फ्रीडम देना चाहते हैं, इक्वालिटी देना चाहते हैं, रेडिकल्स. और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी यानी कि पुराने विचारधारा वाले जो क्या है सोसाइटी को चेंज करना नहीं चाहते, वो ओल्ड विजन से ही अपनी लाइफ को क्या है सर्वाइव करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कंट्री में सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके. तो फर्स्टली स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट लिबरल्स. और लिबरल्स को हम हिंदी में बोलते हैं उदारवादी यानी सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना. They suggested to change the society and supported at the idea based on tolerance of all religion. They respected all religion and they supported the idea based on all religion. And they wanted to change the society. They opposed the uncontrolled power of dynastic rulers and they wanted to remove the dynastic ruler from the country. And they wanted to safeguard the right of individual against government. And they wanted to provide equal right to all citizen. Liberals का मीन्स है बेटा उदारवादी, जो पर्सन कंट्री में क्या है चेंज करना चाहता है और वो दे रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन. और वो क्या है डायनेस्टिक रूलर यानी कि जो डायनेस्टिक रूलर उसको चेंज करना चाहता है. They wanted to safeguard the right. They also wanted to provide equality to all citizens. And they provide safeguard the right of individual against government. कि सभी को equal rights provide करने चाहिए, कोई भी government किसी के भी rights को क्या है misuse नहीं करेगा. तो liberals की सोच यही थी कि वो सभी को क्या है equality provide करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कंट्री में जो सभी पर्सन वो क्या हो इक्वल हों. दे सपोर्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव, वो चाहते हैं कि कंट्री में क्या है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो, लोगों को अपनी सरकार चुनने की क्या और फ्रीडम होनी चाहिए. एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट में इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए. एंड एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए. एंड नो वन एनी कैन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी.
सो वो चाहते थे कि कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट जो चुनी जाए वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होना चाहिए। पार्लियामेंट यानी कि इसमें प्रेसिडेंट हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों हो, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट में क्या सपोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, राइट्स का यूज़ कर सकें वो। एंड लिबरल बट वन थिंग इज लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में राइट टू वोट अबाउट द एज ऑफ 18 years, बट दे वर नॉट बिलीव इन डेमोक्रेट्स राइट्स एंड दे फेवर्ड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन। लेकिन उनमें एक कमी थी, वो ये चाहते थे कि राइट टू वोट है, यानी कि राइट टू वोट है वो क्या है, मैन को मिले, वुमेन्स को नहीं मिलनी चाहिए, और वोट भी उनको मिलनी चाहिए जिनके पास क्या है, ऑन प्रॉपर्टी, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, जो 25 से अबव होने को क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो लिबरल्स है जो सोसाइटी को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन वही चाहते हैं कि राइट टू वोट सबको प्रोवाइड ना किया जा सके। वो चाहते हैं कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, सब रिलीजन्स को फॉलो करना चाहते हैं, और वहाँ पे वो डायनेस्टी रूल को चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो रूल्स थे वो थे जो थे लिबरल्स थे, जो सोसाइटी में चेंज लेना चाहते थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स रेडिकल्स ऑल्सो दे वांट्स टू चेंज द सोसाइटी, so they supported in 18th century, they supported the government based on majority. They believed that government had formed on the majority. Majority means public opinion. They opposed the privilege given to great landowner and wealthy factory owner. They opposed the privilege. They wanted to remove the privilege system in the society. वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो या गवर्नमेंट वो मेजॉरिटी बेस्ड पे हो, मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो भी के पर्सन जिस भी गवर्नमेंट को चाहता है उसी को क्या करना चाहिए, वोट देना चाहिए। एंड वो चाहते थे कि सभी को जो प्रिविलेज बाय बर्थ हो तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, जो फ्रेंच में था कि नोबेल्टी एंड क्लर्जी को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन इसी का वो अपोज करते थे कि किसी भी पर्सन को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करनी जानी चाहिए, ना ही किसी लैंड ओनर को, ना ही किसी वेल्दी फैक्ट्री ओनर, यानी किसी फैक्ट्री ओनर को बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। और वो चाहते थे कंट्री में सबको इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले, इसलिए वो चाहते थे कंट्री को चेंज करना चाहते थे। एंड मैनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट, और वो दे ऑल्सो वांट टू चेंज द सोसाइटी एंड दे वांटेड टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू वोट टू ऑल वुमेन। वो चाहते थे कि वुमेन्स को भी क्या मिले, राइट टू वोट मिले। वहाँ पे देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द रेडिकल्स। They supported private property but dislike concentration of property in the hands of few people. वो सपोर्ट करते थे, they supported private property, वो चाहते थे कि सबके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, but they dislike concentration of property, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में बट के रह जाए, या वो चाहते थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल पीपल, सभी लोगों के बीच में क्या है प्रॉपर्टी का बंटवारा सही होना चाहिए, ये ना ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी का क्या हो कंसिडरेशन होके रह जाए। तो रेडिकल्स चाहते थे कि सभी को इक्वालिटी मिले, और इसी के बिहाफ पे वो कंट्री में क्या करना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे। तो ये जो थ्योरी थी वो थी रेडिकल्स की। नेक्स्ट आता है बेटा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स है रूढ़िवादी, यानी पुरानी बातों वाले, पुरानी परंपराओं को मानने वाले। दे अपोज द व्यूज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। उन्होंने हमेशा रेडिकल्स और लिबरल्स के व्यूज तो उसको हमेशा अपोज किया, उसका हमेशा उसको क्या है गलत माना है। अर्लियर दे अपोज द आइडियाज ऑफ चेंज, स्टार्टिंग दे अपोज इन द 18th century and of the 18th century they oppose the idea of change. They did not want to change the society. बट बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड सम चेंज। लेकिन 19th century का आते आते उन्होंने क्या है सम चेंज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कि वो चाहते थे ठीक है चेंज तो हो जाए, लेकिन जो चेंज है वो भी क्या एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए दे असर्टेड दैट पास्ट मस्ट
बी रिस्पेक्टेड, उन्होंने कहा कि हमें पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, पास्ट की जो भी विज़न है, जो भी थॉट है, हमें उनको मानना चाहिए, उन्हीं को आगे हमें लेके जाना चाहिए, उनको एकदम बिल्कुल मानने से मना नहीं करना चाहिए, हमें पास्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे वॉन्टेड चेंज बट एट ए स्लो पेस, वो भी चाहते थे कि कंट्री में चेंज हो, लेकिन वो चाहते थे कि जो चेंज का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो, एकदम कंट्री में से बिल्कुल पुरानी चीज़ों को रिमूव ना किया जाए, जो चेंज हो वो धीरे धीरे हो। तो इसीलिए जो कंजर्वेटिव है वो कंट्री में जो चेंज है वो धीरे धीरे ही क्या करते थे, उसको चाहते थे, इसीलिए वो कहा जाता है कंजर्वेटिव। So these were three categories, three group were emerged in 18th century in Europe. First liberal, second conservative and radicals. Liberals हैं, वो चाहते थे इक्वालिटी प्रोवाइड करना सभी को, लेकिन दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो चाहते थे सब वुमेन्स को राइट टू वोट ना दिया जाए। वहीं कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव चाहते हैं सभी को इक्वल राइट्स मिले, मैन या वुमेन्स। और फिर कंजर्वेटिव है, दे डू नॉट वांट टू चेंज द सोसाइटी बट दे एग्री दैट दे सेट द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्ट, वो चाहते थे कि हमें अपने पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी बट एट ए स्लो पेस, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो लेकिन वो काफ़ी धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम रिसेंटली बिल्कुल सारा चेंज नहीं हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, ये तो थे आपकी 3 जो ग्रुप्स अमर्ज हुए थे इन 18th सेंचुरी में इन यूरोप में। अब देखिए, इन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद इंडस्ट्री सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जब न्यू इंडस्ट्री सेट होती है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आने से सोसाइटी में क्या उसका इफेक्ट होता है, क्या सोशल चेंज होते हैं, तो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन many changes came in the society and economy. Due to industrialization, due to many industry had been set up in Europe, and due to industry revolution, new cities, new industry region and new railway lines were developed in Europe. Men, women and children work in factory because due to new industry, many men, women and children worked in the factories for their survive, but their wages were very low and the working hours were often long and wages were very poor, and the condition of men, women and children were very bad. Due to unemployment was common due low demand for industrial goods, बट अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन ड्यू टू लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड काफ़ी कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे मैन, वीमेंस और जो चिल्ड्रन थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, और वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, उनकी वेजेस जो थी वो काफ़ी कम थी, जिससे उनकी जो लाइफ सर्वाइव करने काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और जो उनको रहने की अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से उनको हाउसिंग, दे हैड नो हाउस फॉर, they were not any house and they were have sanitation problem, and since town were grown rapidly, और क्या है, उनके पास घर ना होने की वजह से और साफ़ सफाई ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम थी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनकी कंडीशन, जो वर्कर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड होगी। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और जिससे कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बैड हो गई थी। और ज़्यादा कंडीशन बैड होने की वजह से सोशल जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे। फर्स्ट है, लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इशू। लिबरल्स और रेडिकल दे वांट टू चेंज द सोसाइटी एंड दे सर्च फॉर सोल्यूशन टू दिस इशू। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की क्या उन्होंने कोशिश की। वो चाहते थे कि सभी को क्या मिले, सबको अच्छे से हाउसिंग मिले, सैनिटेशन प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके, बिकॉज दे वर वेरी रिच एंड दे वर फैक्ट्री ओनर। वो सारे लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो रिच थे और फैक्ट्री ओनर थे, और वो चाहते थे कि जो वर्कर्स वो काम करते हैं, दे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी एनकरेज।
कि वर्कर जो वर्क करते हैं उनको उनके काम के लिए बहुत अच्छा उनको वेजेस प्रोवाइड की जाना चाहिए, और वो चाहते थे कि वर्कर्स को उनको क्या है उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए उनको अच्छे से वेजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और इसी वजह से सोसाइटी में चेंज भी लाना चाहते थे। एंड दे ऑल्सो हेल्ड दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकॉनमी इज हेल्दी एंड सिटीज़न वर एजुकेटेड। उन्हें कहा ये बेनिफिट हमें अपनी सोसाइटी में बेनिफिट तभी होगा जब वर्क फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वर्क फोर्स जो होगी यानी जो लेबर होगी उनकी कंडीशन तभी अच्छी होगी जब वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे। एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, और सिटीज़न जो है वो एजुकेटेड होंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, वेजेस अच्छी होगी, तभी उस कंट्री की क्या होगी, इकॉनमी भी ज़्यादा बूस्ट करेगी। एंड मैनी वर्किंग, इसी वजह से काफ़ी सारे मैन और वुमेंस ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स एंड मैनी वर्किंग वुमेन्स एंड मैन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड दे स्टार्टेड रैलीड अराउंड लिबरल्स। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, लिबरल्स के साथ काफ़ी सारे रैलीज फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। लिबरल्स और रेडियस ग्रुप के साथ उन्होंने क्या है अपने ग्रुप मर्ज करना स्टार्ट कर दिए 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि जो मैन और वुमेन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड होने की वजह से वो चाहते थे कंट्री को चेंज करना चाहते थे, और कंट्री को चेंज करने के लिए उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ क्या कर लिया, अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सभी लोग ये चाहते थे कंट्री में से डायनेस्टिक रूलर सिस्टम को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड किया जाए और सबको इक्वल राइट दिए जाएँ। And some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to kind of government established in Europe in 1815। 1815 में यूरोप में जो भी गवर्नमेंट बनी थी, यानी जो डायनेस्टिक गवर्नमेंट जो बनी थी यानी मोनार्क सिस्टम जो गवर्नमेंट बनी थी, वो सभी चाहते थे कि कंट्री में से रिमूव हो जाना चाहिए, उनको रिमूव करना चाहते थे। दे वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी और रशिया में 1815 के बाद जो भी मोनार्च बने थे, जो भी वहाँ पे किंग थे, उनको अपनी पावर से हटाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर विशेस एंड विजन। इसलिए उन्होंने जो जहाँ भी फ्रांस में, क्योंकि सभी क्या यूरोप कंटिनेंट का ही पार्ट है, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी, रशिया में मोनार्क सिस्टम को कंट्री में से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद है आपका कि नेशनलिस्ट एम्फेसिस, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मीन दोज पर्सन हु चेंज द सोसाइटी, they implemented on revolution that would create nation where all citizens would have equal rights। नेशनलिस्ट चाहते थे कि रेवोल्यूशन चाहते थे, वो जो क्रांतिकारी थे वो ये चाहते थे कंट्री को ऐसा नेशन बनाया जाना चाहिए, क्रिएट ए नेशन, ऐसा नेशन बनाना चाहिए वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट, जहाँ सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएं। एंड आफ्टर 1815 गिसेप्पे मैज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। और उसके बाद क्या है, इटली के जो गिसेप्पे मैज़िनी थे उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ पे इटली में अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा को वहाँ से क्या कर दिया, हटाने की क्या करी, कोशिश करी, और इटली में, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जा सके, और वहाँ पे नेशन ऐसा, इटली को भी ऐसा नेशन बनाया जा सके जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाए। इसलिए 1815 में गिसेप्पे मैज़िनी ने, जो इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने अपने समर्थक यानी उसने अपनी सेना के साथ मिलकर तो उन्होंने इस लक्ष्य को क्या किया, हासिल किया, और राजा को क्या कर दिया, राजा ने मोनार्क सिस्टम को कंट्री में से रिमूव कर दिया इटली में गिसेप्पे मैज़िनी ने। सो दीज वर सम इंडस्ट्रियल चेंज इन सोसाइटी एंड दीज वर सम सोशल चेंज इन यूरोप। सो स्टूडेंट, रशियन जो रेवोल्यूशन है इसमें आपको बताया कि यूरोप में जो था, यूरोप में जैसे फ्रांस है, फ्रांस रेवोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 स्टेट थे, तो यहाँ पे 3 ग्रुप अमर्ज हो गए थे, लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड
रेडिकल्स, और उन्हीं की थॉट की वजह से वो चाहते कंट्री में से पुरानी चीज़ों को हटाना चाहते थे, न्यू चीज़ों को लाना चाहते थे, और कंट्री में से डायनेस्टी रूलर को ख़त्म करना चाहते थे। और इसी वजह से ड्यू टू इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हमें कंट्री में पुराने थॉट्स को रिमूव करके न्यू थॉट्स को लाने चाहिए। और इसीलिए 1815 में गिउसेप्पे मैज़ीनी ने भी अपने इटली में जो वहाँ पे मोनार्क सिस्टम का उसको रिमूव कर दिया था, ताकि सबको क्या मिले। तो उनका जो मेन आइडिया था वो सोशलिज्म था। वो चाहते थे कि दे वांट टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन एंड दे वांट टू क्रिएट ए नेशन। वो चाहते थे कि ये कंट्री को क्या है नेशन बनाया जाए जहाँ सबको क्या मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट टुडे योर होमवर्क, डू फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज what were the views of the liberals in 19th century Europe regarding universal adult franchise? And question number second, who were called radicals? Question number third, who all wanted revolutions to put an end to monarchical system? Who all wanted to change the system of monarchy? And question number fourth, what were the views of liberal about the transformation of society in 18th century? Question number fifth, what problems were brought by industrialization? And question number sixth, what were the ideas of conservatives? Okay student, all questions done in your fair notebook. Thank you student.